A very good evening to everyone. Sorry to have kept you waiting. There were certain technical glitches, but I think we are good to go. On behalf of Energy Swaraj Foundation, it is my pleasure to welcome you all to the introductory session for Energy Swaraj Warriors with Professor Chetan Singh Solanki. For last few years, we have received tremendous support from each one of you in our journey, starting from Student Solar Ambassador Program to the various training activities that the ESF has organized in last couple of years. And I'm sure we will receive even greater support for the energy literacy training once you all become Energy Swaraj warriors. Before we begin with this session, I would just request each one of you to kindly stay on mute, and if there are network issues, turn off the videos just so that the session goes on smoothly. During the Q&A session, we'll ask you all to put your questions in chat and try to answer each of the questions that arise during the session. Moving forward, Professor Chetan Singh Solanki needs no introduction whatsoever. However, to start with this session, I would take this honor to introduce him. As we all know, Professor Chetan Singh Solanki, who's an professor at IIT Bombay, has undertaken Energy Swaraj Yatra from November 2020. He is currently on an unpaid leave from IIT Bombay. In his 11 years yatra, Professor Solanki is living on a solar bus and has pledged not to go home until 2030 or till the time he is able to tackle what is the catastrophic climate change that is there. The whole purpose of the yatra is to create a public movement towards adoption of solar energy. Often called as Solar Man of India, he has been honored with the title of Brand Ambassador of Solar Energy of Madhya Pradesh government. Some people also call him Solar Gandhi. Following Gandhi ideals, he has coined the term Energy Swaraj Foundation to establish Energy Swaraj, that is energy by locals for locals globally. With this purpose, he has founded Energy Swaraj Yatra, and to achieve the public movement and bringing together people to mitigate climate change, one of the important tools will be to make people energy literate, which Professor Solanki will talk about in the upcoming sessions. For this, we will be nurturing frontline warriors for tackling climate change. Today is the first session of the Energy Swaraj Warriors, and we all here have the opportunity to become first batch of warriors. I would now invite Professor Solanki to start the session. Sir, over to you. Yeah, hello everyone. Good evening once again. And as Swati mentioned, many of you have been contributing to the solar projects. You have been contributing to the promotion of solar technology. कई लोगों ने सोल्स प्रोजेक्ट में भाग लिया, कई लोगों ने एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग भी की. एंड फाइनली हियर इज अनदर अपॉर्चुनिटी कि हम जब इतना बड़ा जो समस्या है उसको हल करने के लिए we have come up with this Energy Swaraj Warrior program. So thanks to all of you for being there, and we hope कि अभी से लेके 2030 तक है ना, ये जो यात्रा है, this is for 11 years. आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी बस में बैठा हूँ, है ना, यही मेरा घर है और 11 साल तक यही मेरा घर होने वाला है. ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले आए हैं. तो ये जो समस्या है उसके लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट की जरूरत है, एक जन आंदोलन की जरूरत है. एंड उसके लिए हजारों लाखों लोगों को कंट्रीब्यूशन की जरूरत है. एंड दैट्स व्हाई दिस program that we have launched, Energy Swaraj Warrior. So not only that you can understand, become warrior, learn, but also you can also earn some money. तो दोनों काम हो सकते हैं. आज का जो सेशन रहेगा, आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये क्या है वॉरियर, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है. बट बिफोर दैट आई विल आल्सो गिव यू कि क्यों करने की जरूरत है एंड और हमें कितने कमिटमेंट के साथ इसकी जरूरत है. Swati, I hope everybody is allowed to in. Some people are messaging me that they are waiting outside. Everybody is in now? Everybody is in, and as and when they come in, I will take care of that. Okay, fine. Fine. Go to the next slide, please.
So welcome you all to the this first session, and this is the part of the training. So before I start training, let me ask all of you, how are you all? सब लोग कैसे हैं? You can unmute yourself and answer. Everything is Fine. okay, sir. Fine, sir. Fine, sir. Yeah, I okay. We are happy. Thank we you. are I don't talk to people who are fine. You know, I only talk Happy, to sir. people who are happy. I'm happy, sir. Yes, sir. We are happy. Happy, sir. Yes, sir. Very happy. Yes. So Sir, actually, like, we if can't you are see going to your become series, part of the Energy Swaraj, whatever. make sure that you are happy. You know, I don't talk to Okay. fine people. So जितने जल्दी हो सके, become happy. And the Yeah. proof that you are happy is the smile on the face. So while I'm talking to all of you, keep a smile on the face. You know, नकली smile होगी तो भी चलेगी, पर smile जरूर होना चाहिए, है ना? Do we all agree to that? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So with all these happy people, you know, let us do some nice things. So go to the next slide, please. And this is the bus I am sitting in right now. ये जो बस है मेरी एनर्जी स्वराज यात्रा की, ये मेरा घर है, और मैं लोगों को बोलता रहता हूँ कि दो ही कारण है कि मैंने 11 साल के लिए घर छोड़ा. एक तो ये है कि ये प्रोफेसर का दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया दिमाग का, अभी घर छोड़ के बस में बैठा है. और दूसरा ये हो सकता है कि नहीं, सच में कोई सीरियस कारण है. व्हाट डू यू थिंक? स्क्रू ढीला लगता है कि सच में सीरियस कारण है? Second, serious issue, sir. सीरियस इशू. थैंक यू सो मच. Yes. थैंक गॉड मैं ऐसा लगता नहीं हूँ कि मेरा दिमाग का स्क्रू ढीला है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट. तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. नेक्स्ट प्लीज. आई एम गोइंग टू पोज सम क्वेश्चंस. यू नो, हम क्यों, व्हाई डू वी नीड टू बिकम एनर्जी स्वराज वॉरियर, व्हाई वी नीड टू डू दिस. फॉर दैट आई एम गोइंग टू पोज सम क्वेश्चंस टू यू. मैं कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ, एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड. नेक्स्ट. So first question, climate is changing or climate change हो रहा है कि हो चुका है? Change already. Climate has Yes, changed. sir. Climate has changed. You know, it has Changed. already हो चुका है. हम Yes. सब लोग हमारी लाइफ में we can experience, we can feel that climate has changed already. बदल चुका है. Next please. And उसका proof क्या है? All over the world there are floods, there are forest fires, there are sea level rise. Everything is happening. Ice melting. समुद्र का लेवल बढ़ रहा है. I mean, I want to show you this picture, है ना, उड़ीसा. ये पिक्चर है गांव का जो कभी हुआ करता था, और मैं खुद इस गांव गया हूँ, उड़ीसा का ही है. ये जो गांव है, ये गांव का मंदिर दिख रहा है. अभी ये समुद्र के अंदर है, परंतु किसी जमाने में एक मंदिर हुआ करता था. यहाँ पे देखो, आपको हेडपंप दिख रहा है, और यहाँ से समुद्र 2.5 किलोमीटर दूर हुआ करता था, 2.5 किलोमीटर. बट नाउ इतना समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, समुद्र पास आते 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 ये पूरे गांव गायब हो गए. एंड ये पूरी दुनिया भर में हो रहा है. सो द क्लाइमेट इज नॉट चेंजिंग, क्लाइमेट हैज चेंज्ड ऑलरेडी. पूरी दुनिया में वेदर सिस्टम बहुत गड़बड़. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यूके में, पेरिस में, फ्रांस में, स्पेन में जंगल में आग लगी हुई. सो इट इज टेरिबल. मतलब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इतना बड़ा बदलाव हो चुका है. नेक्स्ट प्लीज. सेकंड है, व्हाट डू यू थिंक, हु हैज चेंज द क्लाइमेट? किसने चेंज किया है? ये मैंने नहीं किया. आई हैव नॉट डन इट. सरकार ने No, किया. I have done that. इंडस्ट्री ने किया. I have done it. We have done it, Climate sir. change. हमने ही किया है, सर. सर हम ही लोगों ने किया है. हम नहीं. सिर्फ मैं जब लोगों से पूछता हूँ ना कि किसने किया है, तो लोग बोलते हैं इंसानों ने किया है, मैंने थोड़ी किया है. देन मुझे बताना पड़ता है, अरे तुम भी तो हो जो खाना खाता है, तुम ही तो जो एनर्जी का उपयोग करता है, तुम ही तो जो कपड़े पहनता है, तुम ही तो हो जो ट्रेवल करता है. हर व्यक्ति जो एनर्जी का उपयोग करता है वो क्लाइमेट चेंज करता है. सो क्लाइमेट चेंज किसने किया है? तो किसी और ने नहीं, मैंने खुद ने किया है. I have done the climate change. Is that clear? Every warrior should understand कि ये मैंने किया है. Okay, great. Next, please. और इसका प्रूफ ये है कि पिछले 150 सालों में हमारा एनर्जी का कंजम्पशन कितना तेजी से बढ़ा है. और जो बढ़ा है उसका 80 to 85% ये 3 साधन से आता है: कोयला, पेट्रोल, डीजल.
आज की तारीख में इतना सब कुछ होने के बाद भी 85% एनर्जी कम्स फ्रॉम कोल, ऑयल एंड गैस। सो आता है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट स्लाइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है ना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है तो नेक्स्ट प्लीज, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? वातावरण में जाता है। आज इतनी तेजी से ये एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ा है, उतनी ही तेजी से धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अभी लगभग 50% एक्स्ट्रा हो गया। नेक्स्ट, 50% एक्स्ट्रा है। आज की तारीख में जलवायु में जितना CO2 होता था उसकी तुलना में 50% एक्स्ट्रा है। और इस 50% एक्स्ट्रा के कारण 50% एक्स्ट्रा गर्मी हो रही है और उसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरी धरती का तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट, धरती का तापमान अभी लगभग नेक्स्ट इतना तेजी से बढ़ रहा है। ये जो येलो लाइन है ये ट्रेंड दिखाता है। और अभी पिछले 7-8 सालों में तो और भी तेजी से बढ़ रहा है। ये देखो 7-8 सालों में क्या हो रहा है, लास्ट के जो ग्राफ्स हैं, इतना तेजी से धरती का तापमान बढ़ रहा है। अभी आज की तारीख में धरती का तापमान लगभग 2.14 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है नो। 2.14 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अ बिग डील। हमारा बॉडी टेम्परेचर 97-98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सपोज बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं? बुखार आया है। अभी पूरे धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ गया है तो कह सकते हैं पूरी धरती को बुखार आया है। प्लैनेट हैज गॉट द फीवर। और ये बुखार किसने लाया है? मैंने लाया है। ईच इंडिविजुअल हैज डन इट। नेक्स्ट प्लीज। तो ये गड़बड़ है, मैंने किया है, हमने सबने मिलके धरती का तापमान ही बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज गोइंग टू सॉल्व द क्लाइमेट चेंज? गवर्नमेंट और इंडस्ट्री? हु इज गोइंग टू सॉल्व द क्लाइमेट चेंज? कौन करेगा? Each individual, sir. I start from मैं सर I, nobody else. Don't wait for anybody. I am going to solve the problem because I am the one who has caused it. मैंने किया है तो मैं ही इसको ठीक करूंगा। और क्यों ठीक करूंगा? Not for the love of your country, not for the society, but at least for your own children. Do it, you know. अपने बच्चों को जीने लायक धरती छोड़ के जाना है, जीने लायक। और जीने के लिए शुद्ध हवा पहले चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध मिट्टी चाहिए, तब जाके तो वो जी सकता है। और यदि वो तीनों साधन नहीं है उसके पास में तो हमें अपने बच्चों को आई लव यू बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एंड आई कीप टेलिंग ऑल पेरेंट्स, प्लीज आज के बाद से अपने बच्चों को आई लव यू मत बोलना, है ना। क्योंकि ये जो लव है नकली हो गया है। उसको ठीक से पानी नहीं दे सकते बिना फिल्टर का, जो खाना दे रहे हो बिना केमिकल्स का है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं कर सकती। क्योंकि इंडस्ट्री का काम है प्रॉफिट कमाना है, गवर्नमेंट का काम है चुनाव जीत के आना, पर हम सब इंडिविजुअल का काम है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीने वाली धरती छोड़ के आना। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, क्यों हमें सबको करना पड़ेगा? क्योंकि जो बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच वो काम ही नहीं कर रहा है। देखो पिछले 30-40 सालों में क्या क्या हो रहा है दुनिया में। क्योटो प्रोटोकॉल 1998, पहली बार विश्व में डिसाइड किया कि चलो कुछ करते हैं, क्लाइमेट ठीक करते हैं, CO2 एमिशन कम करते। हुआ क्या? नहीं। फिर कॉप मीटिंग्स होती है हर साल। हमारे देश के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री नेता लोग आते हैं, डिसाइड करते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, कुछ करते हैं, CO2 एमिशन कम करते हैं। हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, 181 कंट्रीज ने साइन किया था। क्या डिसाइड किया था? 2030 तक कार्बन एमिशन आधा कर लेंगे। रियलिटी क्या है? कार्बन एमिशन बढ़ते ही जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। तो नहीं हो रहा है। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी तो ग्रो हो रही है, परंतु फिर भी 80-85% एनर्जी CO2 कार्बन से आती है। मतलब CO2 एमिशन होता ही है। हमारे लाइफ का 85% सेकंड्स that we are living, we are responsible for CO2 emission. 85% सेकंड। सुबह शाम जाते उठते खाते पीते ब्रश करते कपड़े पहनते ट्रेवल करते सोते, एवरी टाइम वी आर emitting कार्बन डाइऑक्साइड। सो बिजनेस एज यूजुअल से काम नहीं चलेगा। व्हाट वी हैव टू डू, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जबरदस्त करना पड़ेगा, तभी इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। So what do you think? Use of carbon energy has created a problem or use of solar energy would solve it? ऐसा हो सकता है कार्बन बेस्ड एनर्जी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो सोलर एनर्जी से ये सॉल्व हो सकता है। ऐसा हो सकता है? यस, हमारा लाइफ 100% सोलर पे स्विच कर दें। अच्छा, बिफोर 1850 हमारा लाइफ सोलर पे चलता था। विंड, बायोमास, सोलर से, हाइड्रो से चलता था।
बट हम क्या करें, हमारा रास्ता भटक गए, नो वी हैव लॉस्ट आवर वे, हम रास्ता भटक गए। अभी हमको कोल पेट्रोल डीजल लगता है, बट जहाज का पंछी यदि भटक जाए तो उसको वापस जहाज पे आना पड़ता, नहीं? यदि हम अपना रास्ता खो चुके हैं तो हमें रास्ते पे आने के लिए, सुधरने के लिए, क्लाइमेट को ठीक करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को सुधारने के लिए, पानी मिट्टी को ठीक करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें वापस सोलर एनर्जी पे आना पड़ेगा। 100%, नॉट 99%। एनर्जी स्वराज लाना पड़ेगा, एनर्जी में आत्मनिर्भरता लाना पड़ेगी, तब जाके हम क्लाइमेट को ठीक कर सकते हैं। एनर्जी में आत्मनिर्भरता लाना पड़ेगी। दैट इज व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। सो एनर्जी के कारण खेल गड़बड़ हुआ है पूरा। जो क्लाइमेट बिगड़ा है वो कोल पेट्रोल डीजल कार्बन एनर्जी के कारण बिगड़ा है, और इस खेल को ठीक करना है तो 100% एनर्जी पे या सोलर एनर्जी जो हमारे केंद्र है, हमारे अस्तित्व का केंद्र, उस पर आना पड़ेगा। नेक्स्ट, so one probably last question next, what do you think? Everyone has contributed to the problem, so everyone has to be part of, all has to be part of the solution. Everyone, Yes. हर व्यक्ति को, एक आदमी को भी नहीं छोड़, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, रिच कंट्री का हो कि पुअर कंट्री का हो, डेवलपिंग कंट्री का हो कि डेवलप कंट्री का हो, एवरी इंडिविजुअल, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट, पूरे मानव प्रजाति के इतिहास में पहली बार एक ऐसी समस्या आई है जो हर मनुष्य की समस्या है। ये किसी एक जाति की नहीं है, किसी एक प्रजाति की नहीं, किसी एक राज्य की नहीं, किसी एक देश की नहीं, हर मनुष्य की समस्या है। इसलिए हर व्यक्ति को इसमें जुड़ना पड़ेगा। 1, 2, 4 से नहीं होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ से नहीं होगा, 100 करोड़ से नहीं होगा, 8 बिलियन लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंड दैट्स व्हाई ये एक मूवमेंट बनना चाहिए। एनर्जी में आत्मनिर्भरता एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए, सरकारों से नहीं होगा। एज आई सेड, सरकारों से हुआ नहीं पिछले 30 सालों में, तो इंटरनेशनल लेवल पे कितने एग्रीमेंट हुए, नहीं कर सके। हर व्यक्ति को इसको हल करना पड़ेगा। इट हैज टू बिकम अ पब्लिक मूवमेंट, एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। एंड व्हाट दिस मूवमेंट, एनर्जी आत्मनिर्भरता, आई जनरेट माई ओन एनर्जी, ये मैटर ऑफ प्राइड होना चाहिए। आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, I'm not taking connection from outside, I'm not contributing to the carbon emission, मैं खुद पॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हूँ, सॉल्यूशन का हिस्सा हूँ। मेरे घर बिजली कनेक्शन नहीं है, मैं कम से कम एनर्जी का उपयोग करता हूँ, मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूँ। तो कम एनर्जी में जीवन जीना अपने लाइफ का फैशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत गड़बड़ है। वी हैव टू मेक इट फैशन। कितने कम एनर्जी में अपना जीवन चला सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर बिल्कुल हो सकता है, कैसे? बोले आजकल फटे कपड़े पहनना जब फैशन हो सकता है, तो कम एनर्जी में जीना क्यों फैशन नहीं हो सकता, राइट? So let us all make low energy consumption as a... सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट एक चीज कर सकते हैं कि वॉरियर्स भी जब भी जाए ट्रेनिंग करने, वो बिना प्रेस के कपड़े पहन कर जाए। Of course, yes. I hope you started already. I hope जब वो कर लेंगे, मतलब जब ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, तो I'm sure their life will change. जितने भी वॉरियर हैं, मुझे वार्निंग देना चाहिए कि आप वॉरियर बनोगे तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो आपको लगता है कि जीवन में बदलाव नहीं आना चाहिए, तो ये वॉरियर नहीं बनना चाहिए। I already left ironing the clothes 6 months before. Okay, very nice, very nice. Inspired by you. तो वार्निंग ये है आपको कि यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बदलाव नहीं आना चाहिए, तो वॉरियर नहीं बनना चाहिए। पर आपको लगता है कि नहीं, जीवन में बदलाव आना चाहिए, तो यू आर एट द राइट प्लेस, बिकम एनर्जी स्वराज। नेक्स्ट प्लीज। सो वी नीड टू टेक सम एक्शन। एक जन आंदोलन ऐसे नहीं आ जाएगा कि मैंने सोच लिया वो हो गया, आपने सोच लिया, नहीं। वी हैव टू टेक सम एक्शन। सो मैं आपको 7 एक्शन बताने वाला हूं। ये 7 एक्शन लेंगे तो ये काम हो जाएगा। उसमें से कुछ एक्शन है जो एज ए वॉरियर यू आर गोइंग टू डू। नेक्स्ट प्लीज। नंबर 1, बिकम एनर्जी लिटरेट, है ना। एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग, जो वॉरियर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है अभी, एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग। खुद एनर्जी लिटरेट बनना, दूसरों को एनर्जी लिटरेट करना। जिसको एनर्जी लिटरेट करेंगे वो फ्री में करेंगे, है ना। सो ट्रेनिंग इज फ्री फॉर एवरीवन, and that's why we should be able to make millions and millions of people energy literate. और जैसे मैंने कहा अभी, एनर्जी लिटरेसी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। यदि दुनिया में क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है, तो सबसे पहला कदम क्या है?
एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि एनर्जी के कारण ही खेल गड़बड़ हुआ है, पूरा क्लाइमेट गड़बड़ एनर्जी के कारण हुआ है, क्योंकि हम एनर्जी को समझते नहीं है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पड़ोसी को क्या सजेशन देना चाहिए, मैं कैसे कम कर सकता हूँ, ये सब एनर्जी लिटरेसी। इसलिए पहला स्टेप है एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग, जो हर वॉरियर के लिए कंपलसरी, आपको 3 बार एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग करना है। नेक्स्ट प्लीज। खुद से कर लिया तो दूसरे को करना, पड़ोसी को भी एनर्जी लिटरेट बनाना पड़ेगा, बिकॉज तुमने एनर्जी कंजम्पशन कम कर लिया तो पड़ोसी भी एनर्जी कंजम्पशन कम करे, हमारे फ्रेंड्स करें, हमारे रिलेटिव्स करें, हमारे चाचा मामा काका बाबा, हर व्यक्ति को एनर्जी लिटरेट करना पड़ेगा। एज आई सेड, एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम, एवरीबडी शुड बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सो मेक अदर्स एनर्जी लिटरेट, वही एनर्जी स्वराज वॉरियर्स का मेन काम है। नेक्स्ट प्लीज। And this is my one of the most important message that I keep giving. Energy literacy training is the first step towards climate change mitigation. ये सबको करना पड़ेगा, वो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गेट कीपर हो, सिक्योरिटी पर्सन हो या प्रिंसिपल हो, हर व्यक्ति को एनर्जी लिटरेट बनाने की जरूरत है। तो हमारे जो वॉरियर्स बनेंगे वो स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, कंपनीज में जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, सबको एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग देंगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इज रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। यदि हम सच में वॉरियर हैं, हम सच में क्लाइमेट चेंज को समझते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अपने घर का बिजली का बिल कम करना चालू करना पड़ेगा, 10%, 20%, 30%, वॉट एवर यू फील लाइक, जो भी तुम्हारा मन करे। आई कॉल इट एज अ WWW चैलेंज, विन 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 चैलेंज। WWW क्या है? WW, आपने बिजली का बिल कम किया तो आप विन हो गए, आपने पैसे बचाए, आपने पैसे बचाए तो देश के पैसे बचेंगे, क्योंकि देश को बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 12 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करते हैं एनर्जी इंपोर्ट करने को, वो नहीं करना पड़ेगा। तो आप जीते, आपने कार्बन एमिशन बचाए तो पर्यावरण भी बचा। इसलिए WWW, विन विन विन, यू विन, गवर्नमेंट विन एंड एनवायरमेंट विन, एवरीबॉडी विंस। घर का बिजली का बिल आज से करना चालू करें, करेंगे सब लोग? गुड आइडिया। आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी ट्रिक्स मिलेगी, कैसे अपने घर का बिजली का बिल कम कर सकते हैं। Yes, sir. Definitely, sir. वेरी नाइस। एक्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्लीज। Okay, next. Okay, next है encourage others to reduce their electricity consumption. Very nice. Great, great. Thank you very much for being so positive. A good sign है becoming a warrior. Warrior is one person who is ready to take any across. Great. So next is सबसे कराएंगे. It's not enough that you do it. Everybody has to do it. So हमारा पड़ोसी, हमारे नाना चाचा, सबको will throw a challenge. हम ऐसा भी कर सकते हैं ऐसे भी कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा, और आऊंगा तो आप अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करेंगे तभी आऊंगा। हम स्कूलों में जाके कम कराएंगे, इनसे जाके कम कराएंगे। और मैं इतना ट्रेवल करता हूँ, मैं अभी तक पिछले 1.5-2 साल की यात्रा में 600-700 इंस्टीट्यूशन गया हूँ, हर जगह मिसयूज, हर जगह। मुझे लगता है भारत देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका 30-40% बिजली तो चाहिए ही नहीं। Very good, Hiten ji. Good to see this. Great. Now, so encourage others to reduce electricity consumption. Why? Because prevention is better than cure. सोलर एनर्जी का उपयोग करना अच्छी बात है, परंतु उससे 100 गुना अच्छी बात क्या है? एनर्जी को उपयोग ही ना करें। Got my point? It's good to use solar energy, but the best thing is not to use energy. उपयोग ही कम कर दे, जरूरत कम कर दे। आपको पता है मेरे घर पे न फ्रिज है, न कूलर है, न गीजर है, न एसी है IIT बॉम्बे में। वी डू नॉट नीड एनीथिंग। ऐसा नहीं कि मैं गरीब आदमी इसलिए नहीं, नो, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, पर बेस्ट थिंग क्या है? जरूरत ही उपयोग ही ना करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट, कन्वर्ट योर रूम और क्लासरूम 100% ऑन सोलर एनर्जी। कन्वर्ट योर रूम, एक रूम को सोलर पे करो, 100% करो। एक पंखा, 2 लाइट लगाओ। मैं एक छोटी सी ट्रेनिंग रिकॉर्ड करने वाला हूं, आपको 15-20 दिन में मिल जाएगी, है ना। वो ट्रेनिंग के में आप खुद अपने घर का, अपना कमरा, और आप वॉरियर है तो करना ही चाहिए। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर सिस्टम इज इजी, डू इट योरसेल्फ, खुद से करें और अपने सोलर, एक रूम को सोलर पे करें।
और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो दूसरे को करें, तीसरे को करें, फिर धीरे धीरे बिजली कनेक्शन ही छोड़ दें। तब में जाके एक रियल सुपर वॉरियर बनेंगे आप। तो तब में जाके आप खुद पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बनेंगे। यू विल बिकम रोल मॉडल फॉर द एंटायर सोसाइटी। नेक्स्ट, यू कैन स्टार्ट योर एनर्जी स्वराज क्लब। नॉट ओनली यू बिकम वॉरियर, बट आप जहां भी रहते हो 11 मेंबर के साथ में क्लब चालू कर सकते हैं, ताकि ये जो एक्टिविटीज है क्लाइमेट करेक्शन की 1-2 दिन की नहीं हो, 1-2 महीने की नहीं, हमेशा चलती रहे। जैसे मैंने लिखा है, बी द एक्शन नोड ऑफ द मूवमेंट। इस जन आंदोलन का हिस्सा बनना है तो आप एक क्लब चालू कर सकते हैं और अपने आसपास के दूसरे लोगों को भी क्लब में जोड़ सकते हैं। एक क्लब चालू करने के लिए मिनिमम 11 लोग चाहिए होते हैं। You can do that. Next, please. Last but not least, important है कि हम इसको जन आंदोलन बनाए. We make it as a public movement, and to create a public movement, you can go through the social media and start talking about it. Talk about energy Swaraj. जब आप energy lit लेके आए, go to social media, talk. आप लोग, आई होप आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे, नहीं करते हो तो अभी कर सकते हैं। अपना मोबाइल फोन लेके लेट अस डू 30 सेकंड एक्सरसाइज। जो लोग ट्विटर पे हैं वो मुझे ट्विटर पे देख सकते हैं, डॉक्टर चेतन सोलंकी के नाम से, DRCHETN SOLN डॉक्टर चेतन सोलंकी। जो लोग इंस्टाग्राम पे अगेन सेम डॉक्टर चेतन सोलंकी, और फेसबुक और लिंक्डइन पे चेतन सिंह सोलंकी। सो आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे। एनर्जी स्वराज पेज को फॉलो करें, एनर्जी स्वराज पेज के हैंडल्स को फॉलो करें, ठीक है? तो आप लोग जरूर करें, सो दैट वी कैन क्रिएट अ पब्लिक मूवमेंट। ग्रेट। सो ये सब एक्शन करेंगे तो एक जन आंदोलन एनर्जी स्वराज में मूवमेंट आएगा, और एनर्जी स्वराज में मूवमेंट होगा तभी जाके हम इतनी बड़ी गंभीर समस्या को हल कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमें प्रभावित कर रही है। जैसे मैंने कहा ना, क्लाइमेट इज नॉट चेंजिंग, क्लाइमेट हैज ऑलरेडी चेंज। नेक्स्ट प्लीज। So let's talk about Energy Swaraj Warrior, and I think this is the topic of today's discussion कि हम कैसे warrior बनेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, what is the role of Energy Swaraj Warrior, क्या कैसे इसको follow करेंगे। So next please. First of all, Energy Swaraj Warrior के 2 काम हो सकते हैं या 2 अलग चैनल हो सकते हैं। एक चैनल है you can impart energy literacy training। आप लोग एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं, जहां भी हो, जैसे भी हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में, जहां भी हो, जिस भी राज्य में हो, यू कैन इम्पार्ट एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग। जो अभी हम सेशन करने वाले हैं, अभी जो ट्रेनिंग है, परंतु आने वाले थोड़े समय में हम दूसरी से ट्रेनिंग भी चालू करेंगे। क्या आप में से जो कोई भी है ना, विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो यू कैन इम्पार्ट द ट्रेनिंग फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर सिस्टम। जो घर में लगने वाले सिस्टम है उसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। तो आप चाहें तो सोलर सिस्टम लगाने की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो 2 तरह के वॉरियर बनेंगे, एक तो एनर्जी लिटरेसी के वॉरियर और सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग के वॉरियर। एक वॉरियर दोनों चाहें तो दोनों काम भी कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, वॉरियर्स कैन चूज, 2 तरह के वॉरियर्स हो सकते हैं। कई लोग मुझसे मिलते हैं जो वॉलंटरी करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं तो एज ए वॉलंटरी कर सकते हैं, बट एक ऑनरेरियम भी ले सकते हैं फाउंडेशन से, और हमें खुशी होगी आपको ऑनरेरियम देने में, क्योंकि हम समझते हैं कि सबका काम है, सबको घर चलाना है, सबको जीवन चलाना है, तो कुछ तो खर्चा पानी निकलते रहना चाहिए। तो ऑनरेरियम, दैट इज योर चॉइस। आपको लगता है कि आप वॉलंटरी करना चाहते हैं, वैसे कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप ऑनरेरियम लेना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और आपने जब फॉर्म भरा होगा तो डेफिनेटली ये इसका जवाब दिया होगा। नेक्स्ट प्लीज। Who can become एनर्जी स्वराज वॉरियर? ये भी कई लोगों ने प्रश्न किया, कौन बन सकता है? नेक्स्ट आंसर इज एनीबडी। हर व्यक्ति एनर्जी स्वराज वॉरियर बन सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये आपको फैसिलिटेट करना है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। जो एनर्जी स्वराज ट्रेनिंग फैसिलिटेट करना है, तो जो वीडियोस है ट्रेनिंग के वो मेरे ही रहेंगे, क्योंकि उस लेवल का ट्रेनिंग सब कोई दे नहीं पाएगा। आपको वहां पे फैसिलिटेट करना है, ट्रेनिंग को सेट करना है,
फैसिलिटेट करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, तो वो इसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं हो तो भी चलेगा, कोई बंदा आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, नहीं है तो भी कर सकता है उसके लिए। बस हाँ, एनर्जी स्वराज वॉरियर के लिए इतना है कि उस व्यक्ति को फील हो रहा हो कि यस क्लाइमेट चेंज हो चुका है, आई वांट टू डू समथिंग, मैं इस धरती पर क्लाइमेट को बचाने के लिए कुछ योगदान देना चाहता हूँ, उतना उसमें एक्साइटमेंट, एनर्जी होना चाहिए, हर वो व्यक्ति बन सकता है। नेक्स्ट प्लीज। स्टेप्स ऑफ बिकमिंग एंड बीइंग एनर्जी स्वराज वॉरियर, दो चीज, एनर्जी स्वराज वॉरियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एनर्जी स्वराज वॉरियर बन गए तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यू नो। So there are two sets of instruction that I'm going to give you. Next, please. Steps to become energy storage warrior. Number 1, आपको as a warrior की तरह register करना पड़ेगा. You have already done that. Next, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? You will have session like me, like we are having right now. ये जो मेरे साथ सेशन है ये हमेशा होते रहेंगे, because literally हमें 8-10 हजार वॉरियर्स की जरूरत है भारत देश में अकेले, है ना। तो ये होते रहेंगे, तो ऐसा सेशन होगा। नेक्स्ट, देन आपको एक सेट ऑफ ट्रेनिंग वीडियोस दिए जाएंगे जो आज ही आपको ईमेल मिल जाएगा। स्वाति, आज मेल चला जाएगा ना? सर आज एक ईमेल चला जाएगा जिसमें ये सेशन को कंक्लूड करते हुए सारे डिटेल्स होंगे। ठीक है, आज ही आप सब लोगों को ईमेल आएगा, उस ईमेल में क्या क्या वीडियो आपको देखना है, वो जब आप सारे वीडियो देख लेंगे और अच्छे से देख लेंगे तो दैट इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, है ना। अभी हम फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे और जो कि मुश्किल भी है और एक्सपेंसिव भी है, तो थैंक्स टू ऑनलाइन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी वो वीडियो देखना है। खास करके एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग के आप वॉरियर बनने वाले तो एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग भी 3 बार करना है, आपको खुद से करना है। और उसमें और सोलर के बारे में लोग प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब देते आना चाहिए। तो सोलर के बारे में हमारी वीडियोस हैं जो कि जो मिसकंसेप्शन है, गलत फहमियां हैं लोगों की, वो कैसे ठीक करें, कुछ एनर्जी क्या है, पावर क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, छोटे छोटे प्रश्न जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग देने जाओगे, आप वॉरियर बनोगे, आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, कंपनीज में जाओगे, तो लोग आपसे बीच बीच में प्रश्न करेंगे, तो आपको वो प्रश्न का जवाब आना चाहिए, बेसिक सिंपल से प्रश्न। तो जितने जो वीडियोस हैं वो आपको सबको अच्छे से देखना है। और ये मेरे ख्याल से ट्रेनिंग कितने दिन में खत्म करना है स्वाति, इनको वीडियोस देखने की? ऐसे तो आइडियली हम लोगों ने कंसिडर किया है कि सारे लोग एनर्जी लिटरेट है तो नेक्स्ट 2 डेज में कर लें, और फिर एक अगर डाउट सॉल्विंग सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो मंडे करें, उस तरह का प्लान है। होपफुली वरना थोड़ा टाइम दे देंगे नेक्स्ट वीक के लिए, बट आई थिंक फास्ट पेस करना है। वी कैन गिव 10 डेज टाइम ना, एक 10 दिन का Yes. समय दे सकते हैं। जितने भी सेशन है मेरे ख्याल से 10 दिन में आपको करीब 14 से 15 घंटे खर्च करना है, तो 1-2 घंटे भी खर्च रोज किया तो यू कैन एक्चुअली कंप्लीट द ट्रेनिंग। तो 10 दिन का समय दे सकते हैं और आप लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करें, वो स्टेप नंबर 3 है जो अभी इसके बाद आपको करना है। नेक्स्ट, उसके बाद में एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन में या तो मैं ही रहूंगा या मेरे फाउंडेशन के कोई लोग रहेंगे कि ये जो सारे वीडियो देखेंगे उसमें आपको कोई डाउट है, क्लैरिटी चाहिए, और ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ट्रेनिंग के बारे में जो है वो उसके बारे में क्लैरिटी रहेगी, तो हम वो उसमें क्लैरिटी सेशन में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिर फाइनल सेशन स्मॉल बैचेस में होगा। तो फाइनल सेशन डाउट क्लियरिंग सेशन के बाद में आपको एक गाइड बुक सेंड किया जाएगा, एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट करना, उसकी गाइड बुक रहेगी, है ना। तो चौथे सेशन मतलब चौथे स्टेप के बाद में एक गाइड बुक दिया जाएगा, एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट करना, वहां पे कैसे जाना, कैसे फिक्स करना, कैसे बिहेव करना, कैसे वीडियो चलाना, क्वेश्चन का जवाब कैसे देना, वहां पे एग्जाम भी लेना पड़ेगी वहां पे, क्योंकि एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग में हम तभी एनर्जी लिटरेट मानेंगे व्यक्ति को जो एग्जाम पास कर ले, तो वो करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना, उसकी एक गाइड बुक बनाई है ना, वो करना पड़ेगा। फिर मेरे साथ एक सेशन होगा छोटे छोटे बैचेस में 5-5 लोगों के साथ में या 10-10 लोगों के साथ में, उसमें फिर आपका एक्चुअल में एग्जाम होगा, काइंड ऑफ फाइनल एग्जाम। और जब मुझे लगेगा कि हाँ आपने ठीक से ट्रेनिंग किया है, जब मुझे लगेगा कि आप ट्रेनिंग देने लायक बन गए हैं, तब जाके आप सही मायने में एनर्जी स्वराज वॉरियर बनेंगे।
तो फाइनली आपको जो हरी झंडी है वो मेरे से मिलेगी, और मैं प्रोफेसर हूँ IIT का, और अच्छे से कठिन एग्जाम लेता हूँ। तो आपको सच में वॉरियर बनना है तो बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगी, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको एनर्जी स्वराज वॉरियर का टैग मिलेगा। और मुझे लगता है जिसको भी वो टैग मिलेगा, एनर्जी स्वराज वॉरियर का ID मिलेगा, उसके लिए एक बहुत गर्व होगा, और वो एक अपने अपने बैच की तरह उसको पहन सकता है कि आई एम एनर्जी स्वराज वॉरियर, है ना, उसको एक बैच की तरह पहन सकता है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया जाएगा योर एनर्जी स्वराज वॉरियर। आपके लिए एक ID तैयार की जाएगी, डिजिटल ID, आप उसको यूज कर सकते हैं। एक लेटर दिया जाएगा, आप उसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ यू बिकम द वॉरियर, है ना। तो ऐसे तो आप एनर्जी स्वराज वॉरियर बनेंगे, ठीक है। और फिर आप वॉरियर बन गए तो नाउ यू आर रेडी, आप रेडी है कंडक्ट करने के लिए ट्रेनिंग, ठीक है। फिर उसको कंडक्ट कैसे करना है, नेक्स्ट बिकम तो होगा। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उसका क्या करिए? अगर कोई फेल हो गया एग्जाम तब? क्लियर नहीं हुआ उसको फिर से देना पड़ेगा एग्जाम, सप्लीमेंट्री का चांस दिया जाएगा ना, एक बार फिर से एग्जाम में मिलने का चांस दिया जाएगा। तो जिसको एग्जाम क्लियर नहीं होगा उसको 80 के 80 मिलेगा, जैसे उदय जी ने कहा, और फिर से अपीयर होने का चांस मिलेगा। और डोंट वरी, आप सच में चाहते हैं वॉरियर बनना तो बन जाएंगे। तो वॉरियर बनने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको कंडक्ट करना है ट्रेनिंग से ना। तो कैसे कंडक्ट करना है, आपके क्षेत्र के आसपास के जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, कंपनी है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, NGO है, कहीं भी आप उनके साथ में बात करके, ये जो एनर्जी स्वराज ट्रेनिंग है वो करीब 4 घंटे चलेगी, 3 से 4 घंटे। पर 3 घंटे करेंगे तो ठीक से होगा नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा, तो आप मान के चलो 4 घंटे ट्रेनिंग चलने वाली है। तो आपको क्या करना है, स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, ये करके वो करके हम भी डिक्लेयर करेंगे कि अब ये हमारे वॉरियर्स हैं, आपके इलाके में जो ट्रेनिंग कंडक्ट कराना चाहता है आपसे कांटेक्ट करेंगे, है ना। और आप खुद जाके अपने सेशन फिक्स कर सकते हैं। क्या क्या फिक्स करना है, अच्छा किस दिन ट्रेनिंग होने वाला है, कितने बजे से कितने बजे होने वाला है, कितने लोग अटेंड करने वाले हैं, है ना। और लॉजिस्टिक मतलब क्या, वहां प्रोजेक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा, वहां पर माइक रहेगा कि नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह, ये आप सबको फिक्स करना है। 1 2 3 को दिक्कत पहली बार में, क्योंकि नहीं पर कर देंगे ना, आप कितने लोग पड़ जाने वाले हैं, आपको लोग छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। तो शुरू में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, पर आपने एक बार 2 4 ट्रेनिंग कर ली, लोगों को पता चलेगा कि ऐसा व्यक्ति है जो हमारे यहाँ के फ्री में ट्रेनिंग कंडक्ट करके जाता है, फिर तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो शुरू में थोड़ा धीरज के साथ काम करना, पेशेंस के साथ में, है ना। और जितने अच्छे ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे उतना अच्छा आपको आगे डिमांड बढ़ेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक बार आप जाके फिक्स कर लिया तो आपको एनर्जी स्वराज फाउंडेशन को बताना है कि आपने फिक्स कर लिया, और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन को आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा ये डेट है, ये तारीख है, ये लोग हैं, इतने लोग हैं। एक फॉर्म है आपको मिलेगा, वो फॉर्म में आप भरेंगे तो हमारी टीम एक छोटा सा उसका बैकग्राउंड चेक करेगी कि भाई कौन सी संस्थाएं कैसे है, बहुत कम लोग तो नहीं है, ज्यादा लोग तो नहीं है, मतलब 200 से ज्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, और एवरेज 50 लोग होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कभी कभी कम भी हो सकता है, कंपनीज में, बड़ी कंपनी है, ज्यादा नहीं हो रहे, कलेक्टर को ही ट्रेनिंग देना है तो कलेक्टर बोलेगा भाई मेरे तो 30 ही अधिकारी है, तो अब 30 से काम चला लेंगे ना। कोई बड़ी जगह है तो हम कम से काम चलाएंगे, पर नॉर्मली कम से कम 50 और ज्यादा से ज्यादा 200, ये हमारे साइज होगा बैच का, ठीक है। तो आप अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट, अनाउंस करने के बाद में फाउंडेशन आपको बोलेगा ओके गो अहेड एंड डू दिस। आप जब जाएंगे तो फिर आप कंडक्ट करेंगे, आपको कंडक्ट करना है तो मैंने कहा आप फैसिलिटेट करेंगे, वीडियो मेरे प्ले करेंगे, पर बीच में क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है, क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है, एग्जाम कैसे कंडक्ट करना है, काफी सारे उसमें गतिविधि रहेगी, वो आपको गाइड बुक में एकदम क्लियर हो जाएगा। आप जब गाइड बुक पढ़ेंगे कैसे कंडक्ट करना उसके लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हर बार बदलते रहेगा तो आप इसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकता, तो वो जो क्वेश्चन पेपर जैसे रिलीज होता है ना आखिरी मिनट में, वो रिलीज होगा, आप कंडक्ट करेंगे, वहीं पे 2 4 लोगों के साथ में आपको आंसर भी दिए जाएंगे। आप वहीं पे जहाँ पे कंडक्ट करने जा रहे हैं फटाफट बैठ के आधे घंटे में क्लियर करके आपका जो लोग पास हुए फेल हुए उसकी लिस्ट फाउंडेशन को देना है।
क्योंकि फाइनली जो सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग का कि आप एनर्जी लिटरेट ट्रेनर हो, मतलब आपने, मतलब जो आपका जिसने ट्रेनिंग ली है वो एनर्जी लिटरेट हो गया है, उसका सर्टिफिकेट फाउंडेशन को देना है, तो फाउंडेशन के पास उसका नाम आएगा, फाउंडेशन उसको सर्टिफिकेट रिलीज करेगा। नेक्स्ट, और जब आप एक ट्रेनिंग कंडक्ट कर लेंगे सक्सेसफुली, तो जो लोग ऑनरेरियम के हैं उनके अकाउंट में ये ऑनरेरियम का अमाउंट जुड़ जाएगा, और 1 महीने तक जितने आप ट्रेनिंग करेंगे उसका अकाउंट अमाउंट जुड़ता जाएगा, और महीने के एंड में आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो हर महीने के एंड में वो अमाउंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो नेक्स्ट 3 लेवल होंगे हमारे एनर्जी स्वराज वॉरियर्स के, 1 2 3। एक लेवल होगा जो जिनको ये जो ट्रेनिंग किया है पर सोलर का बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं, तो वो लेवल 1 रहेगा, फिर लेवल 2 रहेगा, लेवल 3 रहेगा। जो लोगों के जिनको इंडस्ट्री में जाना है उनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन और थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में जब जाएंगे ना वहाँ पे बड़े लोग रहेंगे, टाई सूट वाले लोग रहेंगे कलेक्टर ऑफिस में, तो वो लेवल 3 वाला पर्सन दे सकता है। ऐसे करके अलग अलग लेवल रहेंगे, और उसका जो ऑनरेरियम है वो 500 पर सेशन, लेवल 1 के लिए 750 पर सेशन, और लेवल 3 के लिए 1000 रुपीज पर सेशन। आई एम श्योर आप सब लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन का एक मौका है, दुनिया बदलने का एक मौका है। पर फिर भी दिस इज एन स्मॉल अमाउंट जो आप हमको देंगे, पर एक्चुअल में हम फ्री में दे रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे हम यदि अच्छा कर पाए और अच्छा हमारे वॉरियर्स को सपोर्ट कर पाए ताकि वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यदि कोई 10-15 ट्रेनिंग महीने में करा देगा तो 5,000, 10,000, 12,000 रुपए आराम से वो महीने में ले सकता है। तो इस तरीके से ये काम भी हो जाएगा और हमारा खर्चा भी निकल सकता है। नेक्स्ट, क्या बेनिफिट्स है एनर्जी स्वराज वॉरियर बनने के? क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहले आपको खुद को नॉलेज मिलेगा, आपका खुद का जीवन बदलेगा, है ना। तो एनर्जी स्वराज बन के दूसरे का जीवन सुधारेंगे या दूसरे को ठीक करेंगे वो तो अलग बात है। सबसे पहले तुम ठीक, हमारा खुद का ही जीवन सुधरने वाला, हम खुद ही ठीक होने वाले, हम खुद ही क्लाइमेट में कम कंट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरा, फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशन है, आप जब चाहें तब ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपकी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं, आपके खुद के क्षेत्र में ले सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एक इसको बहुत अच्छे से एक पार्ट टाइम की तरह भी किया जा सकता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, आप यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, आपने यदि इसको हमेशा करते हैं तो 8,000 रुपये, 15,000 रुपये तक भी आप आराम से इसमें अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको एक बहुत रिकग्निशन मिलेगा, है ना। हमारे कई सारे प्रोग्राम होते हैं जो सोलर लैम्प प्रोजेक्ट में काम करते थे, जो सोलर लैम्प बनाते थे, कई सारे लोग उसमें से सरपंच का चुनाव जीत गए, क्योंकि वो इतने फेमस हो जाते थे अपने एरिया में कि उनको सब लोग जानने लगते थे, सोलर वाला आदमी है। तो आप एनर्जी स्वराज ट्रेनिंग करने लगोगे तो आपको अपने इलाके में सब लोग जानने लगेंगे, तो बहुत रिकग्निशन मिलेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा, है ना। आप कहीं पे जाओगे तो आप प्राउड के साथ में कह सकते हैं आप इतने बड़े जन आंदोलन का एक हिस्सा बनने जाने मौका मिलेगा, तो दैट विल यू विल डू इट। आपको फ्री में ट्रेनिंग मिल रही, जो कि ट्रेनिंग है फ्री में, है ना, और सर्टिफिकेट भी फ्री में मिलने वाला। तो एक एनर्जी स्वराज बनने के कई सारे, वॉरियर बनने के कई सारे फायदे। नेक्स्ट प्लीज। सो दैट्स इट, मेरी तरफ से इतना ही है कि क्यों हमें एनर्जी स्वराज वॉरियर बनना चाहिए, कारण क्या है, और हर कोई बन सकता है और हम सब लोग अपने इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और अभी नेक्स्ट 20 मिनट्स तक वी आर ऑल गोइंग टू डिस्कस, आपके जितने डाउट हैं, जितने क्वेरीज हैं, वी कैन ऑल डिस्कस।